Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. Today we will cover daily current affairs quiz for 27th July 2023. So let's start with the first question. So the first question is, which of the following statement is incorrect? We have to tell the incorrect statement out of these options. So the first option is, Mahadai Wildlife Sanctuary is located in the southern part of Goa. Okay. Second statement, the sanctuary is known for its diverse forest and sacred groves. Third statement, Mahadai Wildlife Sanctuary is a home to Goa's 3 highest peaks. And fourth statement, sanctuary is not a nesting ground for critically endangered long-billed vultures. Okay, so and the correct answer for this question is A, and incorrect option is A. Mahadai Wildlife Sanctuary is located in the northern part of Goa, not in southern part of Goa. So let's see the description part. So here correct answer is D. Here you can see Mahadai Wildlife Sanctuary. This is located in northern part of Goa. In southern part of Goa, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary is located. Okay, and this is some important information regarding Mahadai Wildlife Sanctuary. Location is located in northern part of Goa near Sangwem Taluka, near Valpoi town. Okay, and regarding its landscape, very picturesque waterfalls. You can take so many pictures and selfies there. It is a nesting grounds for critically endangered long-billed vultures and diverse forest and sacred groves. Okay. Next, about flora and fauna. Rich biodiversity with Indian Gaur. It is located in the Western Ghats. That's why very high rich biodiversity. Tigers, various deer species, herpetological interest, and hosting bird species also. What is the unique about this particular area? It is a home to Goa's 3 highest peaks and also the origin of Mahadai river. Okay, so statement 1 is incorrect because this particular sanctuary is located in the northern part of Goa. Let's see the next question. So the next question is regarding ethanol. Which of the following statement is incorrect regarding ethanol? Ethanol is produced from sugarcane, corn, rice, wheat and biomass. ठीक है. Second statement, ethanol blended petrol aims to reduce India's dependence on crude oil and cut emissions. Okay. Third statement, grains are the most efficient feedstock for ethanol production due to shorter processing times. ठीक है. Third statement. And the fourth statement says, the Indian government has implemented National Policy on Biofuels 2018 to promote the use of ethanol as a renewable fuel. Okay, so the incorrect option in this is the C option. Why? Let's see the description part. So statement C is incorrect because while grains yield more ethanol, they actually require longer processing times, not the shorter ones. Processing times for conversion into ethanol when they are compared to C heavy molasses, यानी C heavy molasses के comparison में grains take longer processing time to convert into ethanol. Okay, the use of alternative feedstocks like rice and maize has been promoted to diversify ethanol production and minimize supply fluctuations. Supply में दिक्कत ना आए इसलिए राइस एंड मेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ग्रेन्स के कंपैरिजन में. In a recent announcement, why this particular ethanol is in news? Because in the recent announcement at the G20 Energy Ministers meeting, Indian Prime Minister revealed that India has successfully introduced 20% ethanol blended petrol in 2023 and has set a target to implement it nationwide by 2025. Okay, so this is also a great initiative in the regarding the Paris climate change वाला जो हमने promises किए हैं उसको achieve करने के लिए. So here is the poster. ठीक है, India's green future. ठीक है, and what is ethanol? It is a biofuel produced from sugarcane, corn, rice, wheat and biomass. It is blended with petrol to create a cleaner fuel alternative. और इस वजह से हम अपने इंडिया के जो कमिटमेंट्स हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट्स that we are proceeding towards them. ठीक है, that is also one of the ways to proceed this. Byproducts include, what are the byproducts of ethanol? It include distillers dried grain with solubles and potash. Okay, and these are some government initiatives in this regard to promote ethanol. First is National Policy on Biofuels, which came in 2018. Then E100 pilot project, and then Pradhan Mantri G1 Yojana which was launched in 2019,
एंड नेक्स्ट इनिशिएटिव इज रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, रूको इनिशिएटिव, ठीक है, कुकिंग ऑयल का दोबारा से यूज़ करना, रिसाइकिल करना उसको. सो दिस इज रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट समिट वाला 1.5 डिग्री वार्मिंग टारगेट एंड द क्लाइमेट प्रोजेक्शंस अटैच्ड विद द सेम. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Paris Agreement aims to limit the global temperature rise to 2 degrees Celsius by the end of this century. यानी 2100 तक हमें 2 डिग्री राइज तक लिमिट रखना है. एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट वर ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट विलियम नॉर्डॉस इन द 1970s. हालांकि इसके कॉन्ट्रेरी विलियम नॉर्डॉस प्रपोज्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट. अकॉर्डिंग टू द IPCC, if current trends continue, the world is likely to reach 1.5 degree of warming by 2030 to 2052. ठीक है, तो IPCC का ये ट्रेंड इसमें दिया हुआ है. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट बताना है. एज पर द क्वेश्चन ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट फॉर मोर डिटेल्स. पेरिस अग्रीमेंट एस्पायर्स टू कैप ग्लोबल टेम्परेचर राइज एट 2 degrees by the century's end. ठीक है, but emphasis is on to limit it towards the 1.5 degrees, and this particular thing was proposed by economist William Nordhaus to gain traction with the climate experts. Also IPCC क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है टाइम आफ्टर टाइम. अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया था एंड उसमें उन्होंने वार्न किया है कि 1.5 मार्क क्रॉस हो जाएगा बाय 2030 या फिर एज अर्ली एज 2030 एंड मैक्सिमम एज 2052. ठीक है, प्रोजेक्टिंग द सीवर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हम जो लिमिट करना चाह रहे हैं 1.5 को चाह रहे हैं कि टिल 2100 तक हो, वैसा उल्टा 2030 में ही होने जैसे आसार बन रहे हैं. ठीक है, एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड टू प्रोमोट क्लाइमेट चेंज, टू लिमिट द क्लाइमेट टेम्परेचर राइज, ग्लोबल टेम्परेचर राइज अंडर टू कीप इट अंडर 1.5 मार्क. सबसे पहला है नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज लेटेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया था रिगार्डिंग कूलिंग, AC का यूज़ इंडिया में बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लेके आया था इंडिया, जिसमें एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया गया है कि टू कीप द AC टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस ओनली. ठीक है, अनदर वन इज लाइफ इनिशिएटिव. व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इनिशिएटिव, दिस यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, एंड दीज आर द इंडियाज टारगेट्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट फॉर 2030, यानी 2030 तक इंडिया को ये अचीव करना है. रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बिलो 2005 लेवल्स इन 2030 तक. ये हमको अचीव कर लेना है कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी यानी ग्रीन हाउस गैसेस जिस इंटेंसिटी से एमिट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है हमें 35% ऑफ GDP तक. ठीक है, नेक्स्ट इज 40% ऑफ इट्स पावर कैपेसिटी टू बी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल्स, यानी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड फ्यूल्स पे हम बिजली बनाएंगे 40% बाय 2030. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030, यानी 2030 तक हमें एडिशनल फॉरेस्ट लगा के और ट्री कवर बढ़ा के एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है ऑफ 2.5 to 3 billion tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, रिकॉर्डेड अचीवमेंट अभी हम क्या अचीव कर चुके हैं टिल 2014. एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP रिड्यूस्ड बाय 21%. ठीक है, 35 हमारा टारगेट है, वी हैव अचीव्ड बाय 2014 21%. नेक्स्ट इज 35% ऑफ द पावर कैपेसिटी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल्स अचीव्ड बाय मार्च 2018. ये हम मार्च 2018 में ही वी हैव बीन वेरी एम्बिशियस इन आवर टारगेट्स, स्टिल वी आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, एंड अभी जो लेटेस्ट COP27 हुआ था उसके टारगेट्स और रिवाइज किए गए हैं और एम्बिशियस बनाए गए हैं. यू शुड पंचामृत टारगेट, पंचामृत गोल्स जिनको हमारे PM ने बोला है, you should read and tell us in the comment section कि what are those Panchamrit target, what are the 5 targets, more ambitious targets for under Paris Climate Agreement after COP27. ठीक है, 27 के बाद हमने और ambitious targets लिए हैं. ठीक है,
emissions avoided by forest cover fall more than the half between 2010 to 14, those by tree cover double in the same period. यानी ट्री कवर हमने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है एंड एमिशंस अवॉइडेड बाय द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन मोर देन हाफ. ठीक है, तो दीज आर द कंसिडरेबल अचीवमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is regarding this PM Vani initiative. Consider the following statements. First statement says PM Vani aims to establish interoperable public Wi-Fi hotspots known as public data offices offering affordable sachet-sized internet packages. ठीक है, यानी छोटे छोटे इंटरनेट पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को, पब्लिक वाईफाई स्पॉट्स बनाएंगे. दिस इज़ द वन ऑफ द एम ऑफ दिस PM Vani, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है. नेक्स्ट इज ओवर 1.5 lakh वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैव बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अंडर दिस initiative providing unlimited internet access for 5 to 10 rupees per day. ऐसा ऑलरेडी अचीव कर लिया गया है. दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट सेज PM Vani's success depends on support from the government, civil society and startups. ठीक है, तो in this regard all the three statements are correct. ठीक है, let's see the description part so that you will get better idea about this particular scheme. So TRAI proposed creating interoperable Wi-Fi spots. सबसे पहले तो correct answer is C. And Telecom Regulator of India, that is TRAI, proposed the creation of interoperable Wi-Fi spots that will be called public data offices. ठीक है, that will be called public data offices. So PDOs will distribute broadband in sachet-sized packages of 5 to 10 rupees, promoting community content without using the excessive bandwidth. ठीक है, थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस के साथ ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ ना करते हुए इंटरनेट को बढ़ावा देना है. द आइडिया इवॉल्व्ड इनटू PM Vani फ्रेमवर्क एंड वाज अप्रूव्ड बाय द UN कैबिनेट इन दिसंबर 2020. तो प्रपोजल आया 2017 में. ठीक है, फाइनल हो गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा दिसंबर 2020 में. एंड दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम वॉज क्रिएटेड एंड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, हियर इज़ द पिक्टोग्राफिक इमेज ऑफ द PM Vani. PM Wi-Fi Access Network Interface. This is the full form. ठीक है, realizing the dream of digital India. And what is the aim? To increase the broadband connectivity across India and further push internet adoption in rural areas. इस स्कीम में क्या हो रहा है? पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स टू प्रोवाइड वाईफाई सर्विस थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस. नो लाइसेंस फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू दीज पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स. यानी जो गवर्नमेंट लाइसेंस फ़ी लेती है टू कैरी आउट द ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वो यहाँ पे लाइसेंस फ़ी नहीं ले रही है गवर्नमेंट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़े. इट विल हेल्प इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रॉडबैंड इंटरनेट, एनहेंस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम. लेट्स सी द a bit more definitions, some important definitions in this scheme. Public data office किसको बोल रहे हैं? It will establish, maintain and operate only Vani compliant Wi-Fi access points and deliver broadband services to the subscribers. ठीक है, तो ये हम उन ऑफिसेस को बोल रहे हैं जो लाइसेंस फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स बना के. नेक्स्ट इज पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर. हु इज दिस एग्रीगेटर? एग्रीगेटर होगा पब्लिक डेटा ऑफिस का एंड इट विल परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटिंग टू द ऑथराइजेशन इन द अकाउंटिंग. यानी कितना पैसा वैसा जो कैलकुलेट करना है वो, एंड द फंक्शन ऑफ ऑथराइजेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर. ऑथराइजेशन क्या हो रहा है कि मतलब यू विल प्रोवाइड योर KYC एंड मे बी योर मोबाइल नंबर टू ऑथेंटिकेट वेदर यू आर अ वैलिड यूजर. नेक्स्ट, app provider. Who will be the app provider? This particular entity or stakeholder will develop the app to register the user and discover Vani compliant Wi-Fi spots in the nearby area. तो जिन apps के थ्रू हम इस particular सर्विस को एक्सेस करेंगे उसको हम बोल रहे हैं ऐप प्रोवाइडर, एंड विल डिस्प्ले द सेम विद इन द ऐप फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट सर्विस. ठीक है, जैसे आप अगर स्टेशंस पे गए हों, काफ़ी सारे स्टेशंस पे ये सर्विस इज इन प्लेस जिसमें अलग अलग एग्रीगेटर्स ऐप प्रोवाइडर्स इसका यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द सेंट्रल रजिस्ट्री? सेंट्रल रजिस्ट्री विल मेंटेन द डिटेल्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स एंड एज वेल एज द पब्लिक डेटा ऑफिसेस. To begin with, central registry will be maintained by the C-DOT, this particular organization. Tell me in detail about the C-DOT. What is the function of C-DOT? ठीक है. Next,
important and last question for this day, for the day. With reference to the Rajasthan Gig Workers Act 2023, consider the following statements. Which of the following statements are correct? ये बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. The act establishes a board for gig workers registration and welfare. उनके welfare और registration के लिए एक welfare board बनाया जाएगा अलग से as per this act and specific to Rajasthan. This act is inspired by the Hamal model which has been effective in securing workers' rights in the past. ठीक है, तो हमाल मॉडल पे बेस्ड है. सेकंड स्टेटमेंट सेज दिस. थर्ड स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू communicate the aim. The act aims to address the challenges faced by the gig workers such as fair wages, working conditions and social security. So as per the information, all the three statements are correct. So the correct answer to this question is C. Let's see the description part. So here is the correct answer, C. And act establishes a board for gig workers registration and welfare, providing them with a platform for their rights and well-being. ठीक है, this act is inspired by the Hamal model. ठीक है, a successful union that fought for workers' right in the past, demonstrating the effectiveness of such an approach. ठीक है, act specifically addresses the challenges faced by the gig workers. चैलेंजेस में क्या क्या है कि फेयर वेजेस उनको मिले. गिग वर्कर्स में होता कौन है? गिग वर्कर्स होते हैं ऐसे वर्कर्स विच आर एक्टिंग एज द विच आर यूजिंग सम ऐप टू परफॉर्म एंड एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीगेटर्स. ठीक है, तो जो फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये गिग. ठीक है, जो मतलब एक तरह से वो फुल टाइम वर्कर भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर भी नहीं है. दे आर वर्किंग ऑन देयर एज पर देयर अवेलेबिलिटी एंड विल ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, तो जितना वो काम परफॉर्म करते हैं उतना काम परफॉर्म करके वापस चले जाते हैं. तो देर आर सम सेफ गार्ड्स नीडेड फॉर देयर वेलफेयर, जिसमें उनको वर्किंग कंडीशन जो वेलफेयर एक फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलता है, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ऑल सच थिंग्स इज़ करेंटली नॉट गिवन टू द गिग वर्कर्स. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कैसे चीज़ें आएँ उसी को इंश्योर करता है ये पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, दिस इज़ अ डेटा रिगार्डिंग गिग वर्कर्स इन द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग. ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट थोड़ा सा हम जूम करके अच्छे से देख लेते हैं. सो हेयर एज पर द डेटा, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सेट दैट गिग वर्कर फोर्स इन इंडिया इज एक्सपेंडिंग. ठीक है, 2019 और 20 के हिसाब से रिटेल और सेल्स, रिटेल ट्रेड एंड सेल्स में सबसे ज़्यादा गिग वर्कर्स हैं, 26+ lakhs. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में 13 lakhs, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में 6.3 lakhs एंड मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 एंड एजुकेशन सेक्टर में 1 lakh गिग वर्कर्स हैं. और इसमें 31% आर द लो स्किल्ड जॉब्स, 22% आर हाई स्किल्ड जॉब्स एंड 47% आर मीडियम स्किल्ड जॉब्स. ठीक है, जितने भी फ्रीलांसर्स आपने देखे होंगे काम करने वाले, दे आर डिस्क्राइब्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ गिग वर्कर्स. एंड व्हाट विल दिस पर्टिकुलर वेलफेयर बोर्ड विल डू इन राजस्थान? इट विल गवर्न इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कॉम्प्लाइंस ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं, ये मॉनिटर करेगा. मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ एग्रीगेटर्स. ठीक है, जो भी एग्रीगेटर्स होंगे और प्राइमरी एम्प्लॉयर्स होंगे स्टेट में, उन सबका एक डेटा मेंटेन करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा. नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग ऑल द मॉनिटरी बेनिफिट्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. ठीक है, जो भी स्कीम लाई जाएगी और जिसमें जो भी ट्रांसफ़र होना होगा, फॉर एग्जांपल पेंशन या बीमा इंश्योरेंस, दिस विल बी डन थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अप्रोच. नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूटिंग अ कमिटी फॉर फॉर्मुलेटिंग देयर रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. जो भी स्कीम बनाई जाएंगी उसके लिए कमिटी भी कंस्टिट्यूट की जाएगी. एंड इंश्योरिंग वेलफेयर सेस डिडक्शन मैकेनिज्म इज़ इंटीग्रेटेड विद द एग्रीगेटर एंड द प्राइमरी एम्प्लॉयर. मतलब अभी के लिए जो एग्रीगेटर्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल योर ओला ड्राइवर या फिर दिस रैपिडो जो बाइक वाला जो ड्राइवर होता है, राइडर होता है, उनके लिए अभी कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनका पीएफ नहीं कटता. तो दिस पर्टिकुलर थिंग डिडक्शन हैपन्स, दिस विल बी इंश्योर्ड कि भाई हर बार जो भी वो नई राइड बुक करे उसमें कुछ कंपोनेंट कटे, तो उसमें जो भी कंपोनेंट कटेगा that will be added to the PF or maybe the social security benefits to provide social security benefits to the gig workers. So this is all about today's questions. Hope you are liking our initiatives. Hope you follow our other initiatives as well. Please like, share and subscribe to the Tarun IAS YouTube channel as well as Telegram
Twitter, Facebook, wherever you are, you can follow us and keep sharing your feedback in the comment section. Thank you and have a nice day.